Hello students, myself Professor Suresh Hasbe from SDSM Junior College Palghar welcomes you all in today's session. Today we are going to discuss about the 12th physics topic electromagnetic induction, subtopic mutual induction. Before discussing about mutual induction, please like, share and subscribe my channel. Now, before discussing about the mutual induction, first look at this video that will explain about the mutual induction there. Mutual inductance. Okay, क्या है वो देखो. Mutual inductance is the phenomenon in which a change of current in a one coil causes an induced EMF in another coil. The coil in which the current is changed is called the primary coil, and the coil in which the EMF is induced is called as the secondary coil. Now, consider an inductor coil is there. Now, applying a voltage, ये एक coil हम लोगों ने consider किया. Now, applying voltage across inductor, ये inductor इसको बोलते हैं, coil या inductor है. Okay, यहाँ पे हम लोग voltage apply करेंगे. Now, when current passes through this coil at that time, it generates a magnetic field. A magnetic field यहाँ पे generate हो गया. Got it? That is induced. We can able to see that. Now, consider another coil and place in a magnetic field. There is a flux linked to the secondary inductor, which induces the current in it. यहाँ पे ये जो flux link होगा, इसकी वजह से यहाँ पे current indicate हो रहा है. Got it? Now, इसके opposite भी हम लोग कर सकते हैं. Means पहले कॉइल में हम लोगों ने कुछ कंसिडर नहीं किया, सेकंड कॉइल में हम लोगों ने यहाँ पे ईएमएफ पे वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो पहले कॉइल में करंट पास होगा. ये सेकंड कॉइल था, यदि ये यहाँ पे लाया हम लोगों ने, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा एंड द सेम रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन. द करंट फ्लोज इन द फर्स्ट इंडक्टर ड्यू टू द करंट फ्लो इन द सेकंड इंडक्टर. नाउ रिमेंबर हियर इट इज करंट फ्लोज इन फर्स्ट इंडक्टर due to current flow in the second conductor, but they are not touching to the one another. ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है. They are insulated from one another. Then also there is a generation of a current in the another coil is there. ये हम लोगों को अच्छे से याद रखना है. Why it is happens? That is due to the magnetic field. ये यहाँ पे करंट पास होगा, इस coil में से करंट पास हो गया. At that time, it generates a magnetic field. And that changing magnetic field, a changing magnetic flux produces the current in the second coil. तो जैसे हम लोगों ने शुरू में देखा क्या है, जिसमें से करंट पास होता है, जिसको वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी कॉइल, और जिसमें करंट इंड्यूस होता है, ओके, उसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल. अंडरस्टूड दिस वन? तो यहाँ पे करंट जनरेट होने वाला है. नाउ रिमेंबर हियर इट इज we have taken that the two similar coils are there. अब यहाँ से भी करंट पास होगा और यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करेंगे एक वोल्टेज, तो इधर से भी करंट सप्लाई होगा. ओके, तो इसके जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज अ phi12. ओके, दैट इज व्हेन करंट पासिंग थ्रू द फर्स्ट कॉइल, then it will generate a magnetic flux, and that magnetic flux of the coil that is indicated by phi11 and phi12. अब क्या है देखो, ये phi12, that is a flux linkage of inductor 2, that is a coil 2 due to the current I1 या current in the first coil. तो I1 करंट की वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, that is a phi12. यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, that is a phi11. ओके, ये याद रहेगा. अब देखो, करंट हम लोगों ने यहाँ से पास किया था. Got it? Now अब यहाँ पे भी हम लोगों ने एक बैटरी कनेक्ट किया एंड वी आर सप्लाइड द करंट थ्रू दिस आल्सो. तो दोनों में से करंट यदि पास होता है, तो देखो अभी यहां से करंट I1 पास होगा, यहां से करंट I2 पास हुआ. तो here it is, that's yellow dotted line that indicates the magnetic flux of the second coil, and the blue dotted line that represents the magnetic flux of the first coil. तो ये दोनों के मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे हम लोगों को दिख रहे हैं.
तो magnet, these are the two dotted lines are they are overcoming. That means what is happens, that is both the coils are generating the magnetic flux and they are both the coils are placed in a magnetic field of the one another there. ओके इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है. तो यहाँ पे देखो अभी phi22 दैट इज फ्लक्स लीकेज या लिंकेज ऑफ इंडक्टर 2 ड्यू टू द करंट I2. तो ये इसका जो करंट है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है. गॉट इट. अब ये करंट यहाँ पे इंड्यूस हुआ इसलिए यहाँ पे phi12 ऐसे हम लोगों ने कंसीडर किया. अब देखो नाउ तो ये टर्म आ गया. देखो phi21 means magnetic flux linkage of inductor 1 due to the current I2. अब ये इसके ऊपर अप्लाई होगा क्योंकि यहां से ये इस करंट की वजह से ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुआ और इसका जो करंट I1 है इसकी वजह से कितना आ रहा है phi12. दैट इज 1 2 इंडिकेट कर रहा है दैट इज magnetic flux linkage with the second coil due to the current I1 और phi21 इंडिकेट कर रहा है magnetic flux induced in the first coil due to the current 2 there. okay तो I2 there. तो ये हम लोगों को अच्छे से याद रखना है. ठीक है, इसका डिटेल में कॉन्सेप्ट हम लोगों को बाद में स्टडी करना ही है. गॉट इट. तो अब देखो ये जो टर्म्स है इसी को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन ऐसे बोलते हैं. Now, this is the concept of mutual inductance due to which a change of current in a one coil causes an induced EMF in the another coil placed near to it. एक कॉइल का करंट चेंज हुआ तो दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है, प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है. ओके अदर देन दिस ईएमएफ, रिमेंबर दिस वन, ये दोनों ईएमएफ है, इसको छोड़ के यहाँ पे दो ईएमएफ जनरेट होने वाले, इसमें एक और इसमें एक जनरेट होने वाला है. इसी को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस. गॉट इट. म्यूचुअल इंडक्शन, ये हम लोगों को कॉन्सेप्ट समझना है. गॉट इट. ना अब ये थ्योरेटिकली अभी देखो जो अभी हम लोगों ने वीडियो में देखा दो कॉइल्स, ये दो कॉइल्स यहाँ पे है. अब इसमें एक कॉइल 1 है जिसमें करंट हम लोग सप्लाई करें, ये बैटरी इसको कनेक्ट किया है, रिओस्टेट जो करंट यहाँ पे सप्लाई कर रहा है. ठीक है, बैटरी की और रिओस्टेट के थ्रू मींस वी कैन एबल टू चेंज विद द हेल्प ऑफ रिओस्टेट वी कैन एबल टू चेंज द करंट. तो इसमें कॉइल 1 में करंट पास हो रहा है इसलिए कॉइल 1 को हम लोग प्राइमरी कॉइल बोलेंगे और कॉइल 2 में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इसलिए कॉइल 2 को हम लोग बोलते हैं दैट इज सेकेंडरी कॉइल. ठीक है, अब देखो let us consider a case of two coils placed side by side as shown in figure 12.13. ये टेक्स्ट बुक का नंबर है तो इसलिए टेक्स्ट बुक का एज इट इज सेंटेंस मैंने लिया है. सपोज a fixed current I1 is flowing through a coil 1. Due to this, a current, a magnetic field B1, that is XYZ, that is the corresponding coordinates that we have considered there, will be produced in the nearby region surrounding the coil 1. तो इसकी वजह से ये जो डॉटेड लाइंस है हम लोगों को इंडिकेट हुआ है, ये यहाँ पे हम लोगों को कॉइल्स इंडिकेट हो रही है. ओके नाउ लेट phi21 be the magnetic flux linked, that is not like they're linked with the surface area S2 of the coil 2 due to magnetic field B1 vector and can be written as. तो phi21 मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे लिख सकते हैं हम लोग, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ S2 कहां तक, ये जिसका उसका एरिया जितना कवर किया है उतना, जो हम लोगों ने सरफेस एरिया S2 यहाँ पे कंसीडर किया है, इंटीग्रेशन ऑफ S2 B1 वेक्टर डॉट डेल्टा A वेक्टर मींस जितना इफेक्टेड एरिया है उसका हम लोगों ने इंटीग्रेशन ले लिया, हम लोगों को phi21 मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस एरिया देयर दैट कैन बी कैलकुलेटेड where S2 represents the effective surface or that is the area enclosed by coil 2. If the positions of the coils are fixed in space, then यदि ऐसे है तो ये phi21 किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, जैसे हम लोगों ने बोला that is it depends upon the current in the primary coil. Magnetic flux in the second coil due to first one, that is depends upon current passing through the first one. Okay, that's why phi21 is equal to constant, proportionality sign हम लोगों ने remove किया and we are getting constant into I1 where
phi21 that is equal to m21 into I1, इसको इक्वेशन 12.41 हम लोगों ने कंसीडर किया। ये कांस्टेंट जो है इसको m21 लिखा है, वेयर m21 को क्या बोला हम लोगों ने, देखो m21 इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज टर्म एज म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल 2 और सर्किट 2। कॉइल बोल सकते हो या सर्किट बोल सकते हो या आप लोग इंडक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये M21 ये सेकेंड कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस है, गॉट इट। ये हम लोगों ने यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 2 ऐसे बोला है, अंडरस्टूड दिस। अब देखो ये यदि ये पहले कॉइल में से करंट पास होता है तो दूसरे कॉइल में क्या हुआ ये हम लोग डिस्कस किए, ओके। अब इसके अपोजिट, now the induced EMF in coil 2 will be written as, अभी जो EMF जनरेट होगा वो देखो पहले, okay, तो E21 that is equal to minus d phi21 by dt according to Faraday's law we are getting this equation। phi21 का जो previous equation था उसका derivation value substitute किया, that is m21 into I1, तो हम लोगों को ये इक्वेशन मिलेगा E21 is equal to minus m21 into di1 by dt। Okay, we are getting such type of equation is there, got it। तो ये EMF induced in the secondary coil, second coil में। अब इसके अपोजिट जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, now we allow current I2 to flow through the coil 2। इसके अपोजिट मतलब करंट यदि हम लोग coil 2 में से पास करते हैं, on account of this current magnetic flux phi12 linked with the coil 1 is obviously proportional to I2। okay, ये लाइक नहीं है, लिंक्ड है, okay, that is phi12 is directly proportional to I2। जैसे हम लोगों ने बोला that is एक का मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरे के करंट के ऊपर डिपेंड है, तो हम लोगों ने यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द फर्स्ट कॉइल ड्यू टू द सेकंड इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2। तो हम लोगों को ये रिलेशन मिला phi12 is equal to m12 into I2 या m12 is equal to phi12 upon I2, where m12 को क्या बोलेंगे is म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1। ये कॉइल 1 का म्यूचुअल इंडक्टेंस है M12 और कॉइल 2 का क्या था M21, ठीक है। नाउ द इंड्यूस्ड EMF इन कॉइल 1 विल बी, अभी कितना EMF इंड्यूस होगा वो देखो, that is E12 is equal to minus M12 di2 by dt। It may be noted that by symmetry ये इक्वेशन और ये इक्वेशन यदि हम लोगों ने कंपेयर किए, ओके, ये दोनों इक्वेशंस E21 is equal to minus M21 di1 by dt या E12 is equal to minus M12 di2 by dt, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद हम लोगों को ये पता चल रहा है that is M12 that is equal to M21 that is equal to M, okay, it may be noted by the symmetry। तो यदि M हम लोगों ने कंसिडर किया तो देखो अल्टरनेटिव डेफिनेशंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, यही अभी अलग मेथड से कंसिडर करेंगे। अभी देखो क्या है, इट इज एविडेंट फ्रॉम इक्वेशन 12.41 एंड 12.42 दैट जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है क्या है, phi21 is equal to mi1। अभी m12 या m21 और m12 नहीं लिखा है, दोनों जगह पे हम लोगों ने क्या लिखा है m, तो phi21 is equal to m into I1 और phi12 is equal to m into I2। तो इस इक्वेशन से हम लोगों को m is equal to क्या मिला, phi21 upon I1 that is equal to phi12 upon I2। That is by using this one we can able to define the term। Therefore the mutual inductance M of two circuits or coils is the magnetic flux phi s linked with the secondary circuit per unit current, that is IP of the primary circuit। अब यहाँ पे एक में करंट सप्लाई किया तो दूसरे में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना जनरेट होता है ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। जनरली अभी ये 1 2 और 2 1 लिखने से जगह पे हम लोगों ने क्या लिखा है, ये इसके जगह पे phi s, बिकॉज यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल का चेंज होता है कब, व्हेन करंट पासिंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल। ये प्राइमरी करंट है और ये सेकेंडरी मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसीलिए यहाँ पे phi s और IP ऐसे वर्ड हम लोगों ने यूज किए, ओके, जनरलाइज करने के लिए। तो M इज इक्वल टू क्या आया, देखो इसी इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाइड करने के बाद phi s अपॉन IP, इसीलिए हम लोगों ने डेफिनेशन क्या लिखा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस M ऑफ द टू सर्किट्स एंड कॉइल्स is the magnetic flux linked with the secondary circuit per unit current of the primary circuit, okay, or phi s is equal to M into IP।
also from Faraday's law, अभी यही हम लोग Faraday's law से अभी ES is equal to minus d phi s by dt, that is equal to minus phi s का वैल्यू a सब्स्टिट्यूट किया तो MIP, m हम लोगों ने आउटसाइड ले लिया कांस्टेंट, तो माइनस m dip by dt, तो m is equal to क्या मिलने वाला, if we take the magnitude we are getting m is equal to magnitude of ES upon dip by dt. तो hence mutual inductance is defined as the value of induced EMF produced in the secondary circuit per unit rate of change of current in the primary circuit. Okay, तो ये डेफिनेशन मेन डेफिनेशन है दैट इज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो अब लोग तीन अलग अलग मेथड से हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन डिस्कस किया है। ओके, तो इससे हम लोगों को यूनिट क्या मिलने वाला है, देखो द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी। ओके, दैट हेनरी इज इक्वल टू ES, किसमें मेजर करेंगे हम लोग, वोल्ट्स में। ओके, dip by dt, IP दैट इज करंट है, करंट किसमें हम मेजर करेंगे, एम्पियर में, टाइम सेकंड में, दैट एम्पियर पर सेकंड, ये सेकंड ऊपर गया तो वोल्ट अपॉन एम्पियर दैट इज ओहम, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग ओहम सेकंड, 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 ओहम सेकंड। तो यही 1 हेनरी का डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इफ करस्पॉन्डिंग टू 1 एम्पियर पर सेकंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट in the primary circuit, the induced EMF produced in the secondary circuit is 1 volt, then mutual inductance M of the two circuits is 1 Henry. Okay, समझ में आ रहा है क्या है, if 1 ampere per second the rate of change of current in the primary circuit induces an EMF of 1 volt in the secondary circuit, then the mutual inductance of the two circuits is 1 Henry. ये हम लोगों को अच्छे से याद रखना है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ हेनरी। गॉट इट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट इज अ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस का भी यूनिट हेनरी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी यूनिट हेनरी है। ओके, तो ये दोनों टर्म्स आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू सर्किट्स, तो यदि दो सर्किट्स हम लोग कंसीडर करते हैं तो दोनों सर्किट्स का कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होता है वो देखो, मींस हाउ दे आर बाउंडेड टू वन अनदर। अब देखो, इंडक्टेंस ऑफ एनी सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड वोल्टेज इट कैन डेवलप। ओके, दिस इज इक्वली ट्रू फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। गॉट इट, इंडक्टेंस ऑफ एनी सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड वोल्टेज इट कैन डेवलप। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E21। ओके, यदि करंट हम लोगों ने कांस्टेंट रखा तो हम लोगों को ये फॉर्मूला मिलता है, where E21 is the induced EMF developed in the coil 2 due to the portion of the flux from coil 1, okay, reaching to the coil 2, and that is equal to K phi 1। तो ये पोर्शन ऑफ द करंट, तो ये K phi 1 का यदि वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखो क्या है, बट induced EMF is proportional to the number of turns in the coil। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, तो हम लोगों को E21 is directly proportional to N into phi, ऐसे फॉर्मूला है। तो N that is the number of turns in the secondary and magnetic flux of the primary, that is a K phi 1। ये हम लोगों को इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी के लिए फॉर्मूला मिलने वाला है। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट phi 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N1 मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज अ phi 1 किसके ऊपर डिपेंड है, ये प्राइमरी का मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसलिए किसके ऊपर डिपेंड है, दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी। इसलिए यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे K5 के जगह पे N1 सब्स्टिट्यूट किया तो हम लोगों को क्या मिला, देखो E21 is directly proportional to N2, K as it is N1। प्रोपोर्शनलिटी है इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट रिप्लेस किया, अभी तक कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिला, E21 is directly proportional to K N1 into N2, ऐसे फॉर्मूला मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो अभी सेल्फ इंडक्टेंस also L is directly proportional to N square, self inductance is directly proportional to square of number of turns there, ये हम लोगों ने प्रूव किया है। और यदि हम लोगों ने दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया तो N is directly proportional to square root of L, तो N1 into L2 is directly proportional to N1 is directly proportional to under root of L1 and N2 के लिए under root of L2, तो is equal to क्या मिला, देखो अंडर रूट ऑफ L1 into L2।
तो यदि ये वैल्यू n1 n2 यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अभी देखो E21 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, तो ये प्रोपोर्शनलिटी है, तो E21 के जगह पे हम लोग m सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यही फॉर्मूला क्या आने वाला है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k n1 into n2, लेकिन यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी है, तो रिप्लेस करते समय हम लोगों को इज इक्वलिटी आएगी। तो m इज इक्वल टू क्या आया देखो, k n1 into n2, तो n1 into n2 के जगह पे क्या रिप्लेस सब्स्टिट्यूट किया, अंडर रूट ऑफ L1 into L2, मींस हम लोगों को म्यूचुअल इंडक्टेंस हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ अ सेल्फ इंडक्टेंस निकाला, m is equal to k into under root of L1 into L2, where k is nothing but the constant of coupling, a constant of coupling है, k is usually, और इसका वैल्यू क्या होता है देखो अभी, k is usually less than unity, ओके, k का वैल्यू हर बार लेस देन यूनिटी होता है, लेस देन 1 होता है। यदि if k is equal to 1, the two coils will be perfectly coupled and m is equal to under root of L1 into L2, मतलब k का वैल्यू 1 आया तो m is equal to under root of L1 into L2, and at that time what we consider there, that is two coils are perfectly coupled, okay, when k is equal to 1, okay, ये मैक्सिमम वैल्यू है k का। अब देखो if k is greater than 0.5, the two coils are tightly coupled, k का वैल्यू 0.5 से ग्रेटर है तो टाइटली कपल्ड है। if k is less than 0.5, the coils are loosely coupled, that is the term that you have to remember, there is the coefficient of coupling, okay। now if L1 is equal to L2, मतलब इस फॉर्मूले में L1 is equal to L2 हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया, that is equal to suppose L, then the coil with self inductance L is coupled to itself with mutual inductance, मीन्स क्या हुआ देखो, m is equal to अंडर रूट ऑफ L1 into L2, दोनों के जगह पे L सब्स्टिट्यूट किया तो हम लोगों को क्या मिला, L स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर मींस L, मतलब उसका सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम हो गया, ओके। दैट्स व्हाई हम लोगों ने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया देखो, देन a coil with self inductance L is coupled to itself with mutual inductance, that means these are the terms of the or coefficient of couplings are there। तो ये हम लोगों को अच्छे से याद रखना है कि कब क्या होगा, 0.5 से ग्रेटर है तो टाइटली कपल्ड, 0.5 से लेस है, ओके, एट दैट टाइम लूजली कपल्ड आर देयर। अब इसके साथ हम लोगों को ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, इफ the k value for a radio coils, that is a radio frequency transformers are there, lies between 0.001 to 0.05, तो इसके बीच में ये k का वैल्यू हम लोगों को मिलता है, okay, that is a coefficient of coupling for which one, transformers, okay, radio frequency transformers जो है उनका coupling का वैल्यू इतना है, means they are very loosely coupled, okay, that you have to remember there। So these are the some values related to the coefficient of coupling that you have to remember, okay। now next point, that is a transformer, अभी हम लोगों को ट्रांसफॉर्मर डिस्कस करना है। now अब देखो ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ, ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या है देखो, now first one, transformer consists of a one primary coil, another one that is a secondary coil is there, they are wound on a soft iron core, ये soft iron core पे दोनों कॉइल्स ओन किए, वन एक साइड में हम लोगों ने प्राइमरी कॉइल है, दूसरे साइड में सेकेंडरी कॉइल है, एंड रिमेंबर हियर इट इज दिस कॉइल्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम वन अनदर, देयर दोनों कॉइल्स इंसुलेटेड है, ओके, एंड हियर इट इज वी आर गेटिंग दैट इज अ लैमिनेटेड आयरन कोर, ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज अ लैमिनेटेड आयरन कोर, जो आप लोगों को सर्कल करके इंडिकेट किया है, ठीक है, दीज आर नथिंग बट द स्लॉट्स ऑफ द आयरन कोर देयर, दैट इज टू डिक्रीज द ईडी करंट, जो हम लोगों ने ईडी करंट लेते समय ये डिस्कस किया था, तो लैमिनेटेड आयरन कोर है, हियर दीज कॉइल्स आर आल्सो लैमिनेटेड विद दिस कोर देयर, तो हम लोगों को ये डिस्कस करना है। अब देखो व्हेन करंट पासेस थ्रू द
प्राइमरी कॉइल को हम लोगों ने एसी सर्किट कनेक्ट किया, इसमें से करंट पास होगा, इट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे जैसे करंट पास होगा एट दैट टाइम इट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार हो रहा है, देखो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से पास होगा एंड दैट्स व्हाई मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल आल्सो गोज ऑन चेंजिंग, इसका भी सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा एंड दैट्स व्हाई ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए डिस्कस किया था, वही टर्म था, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है, गॉट इट, दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ट्रांसफार्मर, दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो अब देखो यहां पे ट्रांसफार्मर, अभी theoretical part. A transformer is a device used for changing the voltage of alternating current from low voltage, low value to the high value or vice versa. Transformer क्या करता है? A device used for changing the voltage of alternating current from low value to the high value there. ठीक है। अब ये जो हम लोगों ने वीडियो देखा उसका जो ये डायग्राम है, एक साइड में प्राइमरी कॉइल है, दूसरे साइड में हम लोगों ने सेकेंडरी कॉइल, एंड दिस इज नथिंग बट द आयरन कोर इज देयर। जैसे इसमें से करंट, प्राइमरी कॉइल में से करंट पास होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इसका चेंज होता है और सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होता है, ओके। वही हम लोगों को भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। Whenever the magnetic flux linked with the coil changes, an EMF is induced in the neighboring coil, that is the secondary coil. In a transformer, there are two coils, primary, that is a P, and secondary S, insulated from each other and wound on a soft iron core as shown in figure 12.14. Primary and secondary coils are called input and output coils respectively. Okay. अब देखो, when an AC voltage is applied to the primary coil, the current through the coil changes sinusoidally, means change होता है, AC alternating current होता है, causing similar changes in the magnetic flux through the core. As the changing magnetic flux is linked with both the primary and secondary coils, EMF is induced in each coil. The magnetic flux linked with the coil depends upon the number of turns of the coil. अब देखो, let phi be the magnetic flux linked per turn with both the coils at an instant t, Np and Ns be the number of turns in the primary and secondary coil respectively. तो दोनों कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हम लोगों ने यहाँ पे Np और Ns कंसिडर किए। अब क्या होता है देखो, then at the instant t, the magnetic flux linked with the primary coil, that is a phi p is equal to Np into phi, and with the secondary coil phi s is equal to Ns into phi. मैग्नेटिक फ्लक्स सेम है, सिर्फ इसका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक अलग है प्राइमरी का और सेकेंडरी का, इसीलिए दोनों में अलग अलग ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल विल बी EP is equal to minus d phi p upon dt, that is equal to minus Np d phi by dt, and ES is equal to minus NS d phi by dt. इसके जैसे हम लोग यहाँ पे दोनों का EMF निकाला और दोनों का यदि रेशियो लिया तो हम लोगों को क्या मिल रहा है देखो, ES अपॉन EP that is equal to d phi by dt कट हो रहा है, माइनस माइनस कट हो रहा है, तो हम लोगों को NS अपॉन NP मिला। ES upon EP is equal to NS upon NP, that is number of turns of the secondary and number of turns of the primary coil, ये हम लोगों को मिल रहा है। अब देखो, the ratio NS upon NP is called turns ratio or transformer ratio of the transformer. Equation 12.49 is known as equation for a transformer for an ideal transformer. अब इसके साथ हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर का कंडीशन यूज करें, इसमें क्या होता है आइडियल, इसका मतलब क्या है, जितना हम लोग इनपुट दे रहे हैं उतना आउटपुट मिलेगा, ओके। तो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, दैट इज आइडियल ट्रांसफार्मर। तो पावर का जनरल फॉर्मूला क्या है, पावर इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ EMF and current, EP into IP is equal to ES into IS. By using this one, ES upon EP क्या मिला देखो, IP upon IS, that is equation 12.50. अब 12.49 में हम लोगों ने लिया है that is ES upon EP is equal to NS upon NP. तो ये दोनों इक्वेशन यदि कंपेयर किए
तो combining these two equations, what we are getting, ES upon EP is equal to NS upon NP is equal to IP upon IS, that is 12.51. और इसी इक्वेशन से हम लोगों को ट्रांसफार्मर का टाइप डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, या ट्रांसफार्मर का टाइप समझ में आता है. ओके, नाउ केस 1, व्हेन NS is greater than NP, means number of turns of the secondary coil is greater than number of turns in the primary coil. तो क्या होने वाला है, then ES is greater than EP and that is known as a step up transformer, जिसमें वोल्टेज बढ़ जाता है. ओके, तो सेकेंडरी वोल्टेज हम लोगों का बढ़ गया यहाँ पे, एंड IP इज ग्रेटर देन IS, और सेकेंडरी करंट यहाँ पे कम हुआ. करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज मोर देन दैट ऑफ अ सेकेंडरी कॉइल. तो सेकेंडरी का वोल्टेज बढ़ गया लेकिन करंट कम हुआ. अंडरस्टूड दिस वन? तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर. दैट इज द ट्रांसफार्मर व्हिच कन्वर्ट्स दैट द लो वोल्टेज हाई करंट इनटू द हाई वोल्टेज लो करंट. दैट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर. ओके, वैसे ही इसका सेकंड केस क्या है, देखो, व्हेन NS इज लेस देन NP, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी इफ लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी, तो क्या होने वाला है इस इक्वेशन के हिसाब से, ES इज लेस देन EP, देन इट इज कॉल्ड एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. तो इसका करंट का वैल्यू IP इज लेस देन IS, and current in the primary coil is less than that of a secondary coil. इसको हम लोग बोलेंगे step down transformer. Means the device which converts, that is high voltage low current into the low voltage high current, then it is called as a step down transformer. वो याद रखना है. Step up में क्या होता है, low voltage high current is converted to high voltage low current, और step down में क्या होने वाला है, that is high voltage low current is converted to low voltage high current. Okay, that is the term that we have to remember, that just in step down transformer is there. तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस किया है. ठीक है, तो ये अच्छे से आप लोग रीड करो टेक्स्ट बुक में से और अच्छे से याद रखना है. गॉट इट? नाउ बिफोर, thank you. Please subscribe.